MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,17,977 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। सिहोनी दुश्मन ने संगीन गलती की सजा दी जाएगी। खामनेई एक्सपर्ट ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने फारसी जुबान के अकाउंट से पोस्ट की है कि सजा जारी है। सिहोनी दुश्मन ने संगीन गलती की है, एक बड़ा जुर्म किया, उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे अब सजा दी जाएगी। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान का ईरान से इजहार यकजहती, हक दिफा की हिमायत। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुनाक़िद किया गया। रूस, चीन और पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल में करारदाद पेश की गई, जिसमें फौरी जंगबंदी का मुतालबा और आलमी क़वानीन की पासदारी, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुज़ाकरात से हल पर जोर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ।
شمالی کوریا کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، اسرائیلی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں اور انہوں نے کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کی مسلسل جنگی کارروائیوں اور علاقائی توسیع کو ٹھہرایا، جنہیں مغرب کی جانب سے قبولیت اور حوصلہ افزائی حاصل ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، شمس آباد 15، سید پور میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش سے گرمی اور حبس میں کمی آ گئی۔ محکمہ واسطہ کے مطابق نالہ لئی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ بارش کے پیش نظر انتظامات مکمل ہیں۔ رحیم یار خان وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب کے ویژن کے عملی تکمیل، عید الاضحیٰ کے 3 روز گرینڈ صفائی آپریشن کرنے والے ورکرز ہیروز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 10,000 فی کس کو اعزازیہ کی تقسیم۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے صفائی صاف ستھرا پنجاب کے متعلق ایک بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جگہ جگہ گند اور بہت کچھ نظر آتا تھا جو کسی کو بھی برا نہیں لگتا، سب کو ناگوار لگتا تھا۔ اس عید پر یہ چیز آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئی، باقاعدہ سڑکیں دھلی ہیں، باقاعدہ۔ عید الاضحیٰ پہ جو ہماری ٹیم ستھرا پنجاب نے کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے 10,000 جو دیے ہیں ہمارے سینٹری ورکرز کو، اس کا اعلان کیا تھا کہ وہ اپریشیٹ بھی ہوں، موٹیویٹ بھی ہوں۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر شاندار خدمات کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ورکرز کے لیے 10,000 روپے کا اعزازیہ انعام دیا گیا ہے اور ہم ایک شہری ہونے کے ناطے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ستھرا پنجاب کے عملے کو اعزازیہ دینے کی تقریب شاہکوٹ کے مقامی میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ ڈی سی ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ، اسسٹنٹ کمشنر ننکانہ، اسسٹنٹ کمشنر سانگلا، کیئر آف MPP الحاج رانا محمد، رانا شکیل اصغر سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ تقریب میں ستھرا پنجاب کے عملے کو بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ریکارڈ کی گئی۔ 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,17,977 پوائنٹس کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ واضح رہے گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 20 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,20,023 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں امریکی کرنسی میں 5 پیسے کمی ہو گئی۔ ڈالر 283.70 روپے سے کم ہو کر 283.65 روپے پر آ گیا۔ برطانیہ کے بکنگھم کونسل کے علاقے ہائی وکم میں میئر سیلیبریشن ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ ڈنر میں میئر آف ہائی وکم ماجد حسین، ڈپٹی میئر آف ہائی وکم عمران حسین، سابق چیف جسٹس آف آزاد کشمیر چودھری ابراہیم ضیاء اور پاکستان پرنس کلب کے UK کے صدر مسرت اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مہمانوں میں تقریب میں سپر کار اور گھوڑوں پر لایا گیا اور ہال میں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف ہائی وکم ماجد حسین نے کہا کہ ان کے والد کی 3 سال قبل کینسر سے وفات ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے میئر کی چیریٹی کو کینسر ریسرچ کے لیے مختص کر دیا۔ سابق چیف جسٹس آف آزاد کشمیر چودھری ابراہیم ضیاء نے کہا کہ اوورسیز کے بہت سے مسائل ہیں، کیسز عدالتوں میں التوا کا شکار ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2018 سے خصوصی ڈیسک قائم کر کے انصاف کے حصول کو اوورسیز کے لیے ممکن بنا رکھا ہے۔ تقریب سے صدر پاکستان پریس کلب UK مسرت اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اوورسیز کے مسائل، مسئلہ کشمیر اور دنیا میں انسانی حقوق اور شہری آزادی کی جنگ قلم کی نوک سے لڑ رہے ہیں۔ تقریب سے ڈپٹی میئر آف ہائی وکم عمران حسین، سینئر صحافی اور ہم نیوز کے بیورو چیف محمد رفیق مغل، خالد محمود، راجہ واصف چودھری، ارشد علی، سابق میئرز، کونسلرز اور کمیونٹی کے اہم شخصیات نے خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر کشمیر اور فلسطین کی آزادی، دنیا میں قیام کی دعا کی گئی اور میئر آف ہائی وکم ماجد حسین نے کیک بھی کاٹا۔
I would like to thank you, Raja Wasif Sahab and Chaudhry Rashid Sahab, for hosting this mayor dinner in my honor, which they have hosted. And I would like to say thank you to them and each and every single person that have come here today to celebrate this mayor success that I have achieved. I have chosen Cancer Research Charity as my mayor charity. The reason for choosing that was because of my late father, who passed away 3 years ago because of a cancer. And any amount that is collected in 12 months of my mayor term will be donated to cancer research. ये बिल्कुल लोगों के बजा तवक्कात हैं और लोगों के मसाइल भी हैं, हमें इस बात का इदराक है। और कोई भी आप समझते हैं कानून हतमी नहीं होता, इसमें इस्लाह की गुंजाइश मौजूद होती है। तो आज़ाद कश्मीर में ओवरसीज़ जो हमारे यहाँ पे कीमती असासा लोग हैं, उनके जो आज़ाद कश्मीर तल्लक मामलात अदालती मामलात हैं, उनके हवाले से जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में मामला ज़ेर गौर है। और उसमें बाकायदा ये तय हुआ है कि ओवरसीज़ के लिए अलग से जो अदालतों के अंदर डेस्क कायम किए जाएँ और इनके मामलात को तरजीह बुनियादों पर मुख्तसर से मुख्तसर अरसे में जो है वो यकसू किया जाए, ताकि इनकी परेशानी और मुश्किलात में कमी आए। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में अमलन इस पर बहुत काम होगा। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि ओवरसीज़ भी इस सिलसिले में अपने जो उनकी जदोजहद है उसको जारी रखें, और ताकि याद दिलाते रहें अदारों को कि अदारे कहीं गफलत का शिकार न हों और ये इनके जो बेहतरी के लिए इस्लाहात हैं वो जल्द अज जल्द नाफज हो सकें। बरतानिया में ईद के बाद ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला भी जारी है। वहीं पर मशरकी लंदन के इलाके गेंट्स हिल में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत चौधरी रजा चीमा की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का इनेकाद करके परदेस में देश का रंग जमा दिया गया। ईद मिलन पार्टी का एहतमाम रजा चीमा की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें अनवा इकसाम के खानों और ठंडा मशरूबात से खातिर तवाज़ो की गई है। ईद मिलन पार्टी में आए शुरका ने कहा कि ऐसी ईद मिलन तकरीबात मगरबी माशरे में मिलजुल कर बैठने का मौका फराहम करती हैं। वहीं दयार गैर में परवान चढ़ती नौजवान नस्ल अपने रस्म रिवाज और त्योहारों से रोशनास हो सकती है। चौधरी रजा चीमा ने आए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आज ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था, और ये मेरी पार्टी नहीं है, ये मेरे दोस्तों की पार्टी है, जिसमें ये सारे इस तरह शामिल होते हैं जैसे अपने घर का माहौल होता है, घर का प्रोग्राम होता है। तो ये हर साल हम ईद मिलन पार्टी करते हैं, जिसमें कम्युनिटी मिल बैठ के कम्युनिटी के मसाइल हल करते हैं और जो भी मुश्किलात होती हैं उन पर डिस्कस भी होता है। हम यहाँ पे चीमा साहब के घर ईद मिलन पार्टी हो रही है। ये हमारी जो है ना हमारी कम्युनिटी का ये माशाल्लाह हुस्न है कि हम आज जगह जगह पे ईद मिलन पार्टी 100 इख्तलाफातों का किसी पार्टी से तल्लुक हो, किसी इलाके से भी हो, तो हम यानी मिल बैठना, एक दूसरे से मिलना, गप लगाना और एक दूसरे के मसाइल सुनना और उसकी हल की तलाश करना, ये हमारी यानी खुशनसीबी है कि हमारी पूरी कम्युनिटी में ये है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे मामलात, ऐसे पार्टी चलती रहनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को मिलें। कई नए चेहरे यहाँ पे आज मिले, कई पुराने दोस्त मिले। हम हर रोज किसी को नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसी जगहों पे हम मिलते हैं और अपने एक दूसरे के ख्यालात जानते हैं और उसके हल करने की कोशिश करते हैं। तो चीमा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने सबको इकट्ठा किया। चीमा साहब एक ऐसा गुलदस्ता है और ये गुलदस्ते में वो ऐसा फूल है कि जो सबको इकट्ठा करते हैं, और मैं इनके लिए यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक करे कि चीमा साहब इसी तरह मुस्कुराते रहे। वो लामा इकबाल का एक शेर है, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे कर ये बूटा मैंने पाला है। तो इंशाल्लाह ये ऐसे ऐसे जो चीमा जैसे बंदे हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं, और ये हमारे भाई हैं। और यकीन करें कि ये कभी भी किसी भी महफिल में ये पीछे नहीं होते, ये दोस्तों के साथ साथ रखते हैं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये सबको इकट्ठा करते हैं। जी, आज रजा चीमा साहब ने कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को ईद मिलन पार्टी दी, जिसमें कम्युनिटी के हर मकतबा फिक्र से लोगों ने शिरकत की। इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये कम्युनिटी को मिल बैठने का मौका देते हैं, एक दूसरे से अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग होती है, और ख़ासकर इस दियारे गायर में यही एक मौका होता है कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के सेलिब्रेट कर सकें। वरना इस मुल्क में तो हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीमा साहब का जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। जी, आज हम यहाँ पर ईद मिलन पार्टी के मौके पर इकट्ठे हुए हैं। रजा चीमा साहब ने यहाँ पर सबको मदऊ किया है। यहाँ पर तमाम कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, तमाम सियासी जमातों से बालातर यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और एक बड़ा अच्छा माहौल है। सब मिल के बैठे हैं, दियारे गैर में ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। तो ये एक बड़ा ग्रेट मैसेज है सब के लिए कि पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए भी हमारी नेक ख्वाहिशात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।
MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।